Is it visible? So, but we are studying. Uh, okay, so we are studying nitrogen, how nitrogen cycle work. So basically, इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम कि there is a net huge amount of nitrogen present in our environment, around 78%. That's a reservoir for the nitrogen in our atmosphere. So that nitrogen will get fixated by the rhizobium. It's a bacteria in the plant. Okay. Similarly, there is nostoc and the cyanobacterium in other plants also. So the first step that will happen, that the nitrogen present in the atmosphere will be converted into ammonia. How will it be converted to ammonia? It will be converted into ammonia by the rhizobium, which fixate the nitrogen. Okay, nitrogen का fixation होगा. From that the ammonia will come. Okay, ammonia कम होगा, ammonia आ जाएगा, sorry. Then there is another process that is known as nitrification. What does nitrification mean? So nitrification basically क्या होता है? The conversion of this ammonia into the nitrate. Ammonia को किसमें convert करना है? Nitrate में. But why are we converting this nitrogen into ammonia into nitrate and then again into nitrogen? The simple answer is that कि our soil needs some nutrients to grow some crops, some food for us. Okay, so to make a balance between the environment and the soil and the living organism, this kind of cycle exists in our environment. So हो क्या रहा है कि देर इज सम नाइट्रोजन जो हमारे एनवायरनमेंट में है, उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है. दैट फिक्सेशन इज डन बाय राइजोबियम. थोड़ा रूट्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम इन द प्लांट्स. उस राइजोबियम फिक्सेट करेगा नाइट्रोजन को फ्रॉम द इन्वायरमेंट. देन इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया. अमोनिया से नाइट्रिफिकेशन होगा. नाइट्रिफिकेशन भी सिमिलरली बैक्टीरियाज करेंगे, लाइक नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोक्यूकस. ओके, इस टाइप के बैक्टीरिया क्या करेंगे, थोड़ा नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करेंगे. एंड नाइट्रिफिकेशन इज द नेम सजेस्ट कि अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट में कवर कर देगा. ओके, then this nitrate will be denitrified to give some nitrogen again to the environment. So it's a complete cycle कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से निकल के प्लांट से यूज होके then it will be going again back to the environment or the atmosphere. So that's the cycle. But there is uh, another part of this cycle, that is the food chain. Okay, क्योंकि नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट जाके एसिमिलेट हो जाएगा इन द प्लांट्स. ओके, प्लांट्स में एसिमिलेट होगा. देन इस प्लांट को एक पूरा प्रोसेस चलेगा. देन इट इज अ फूड चेन. ओके, वी नो कि पूरा फूड चेन होगा कि कोई किसको खा रहा है, दैट्स दैट थिंग. ओके, देन फूड चेन के बाद क्या होगा, थोड़ा वेस्ट निकलेगा. रिप्रोडक्ट, ओ सॉरी, एक्सक्रीटरी वेस्ट. ओके, सो एक्सक्रीशन से जो वेस्ट आएगा वो डिकम्पोज होगा इन्वायरमेंट में बाय सम बैक्टीरियाज. उन बैक्टीरियाज का नाम है बेसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम. क्लोस्ट्रीडियम एंड बेसिलस. ओके, देन अगेन कौन सा अमोनिफिकेशन का प्रोसेस होगा, देन अमोनिया होगा, देन अगेन नाइट्रिफिकेशन होगा, देन अगेन नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, देन अगेन डीनाइट्रीफाई होके नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो बेसिकली लेट्स बी अगेन कवर दिस. Okay. So now try to focus again. So we are doing the nitrogen cycle. Nitrogen is present in the gaseous in the atmosphere. There is a reservoir of atmosphere of nitrogen in the atmosphere around 78%. Okay, the first step that will happen, the nitrogen fixation. Nitrogen will get fixated
Then there is rhizobium, there is Nostex cyanobacteria. They will convert the nitrogen into the ammonia. Okay, that process is ammonia. Okay, then there is food chain जहाँ से हम खाना खा रहे हैं. There is a excretory waste. That excretory waste will be decomposed by the bacillus, proteus, and the clostridium. And then again the ammonification will happen. In the ammonification basically mean कि ammonia का produce होना. Ammonification is making of ammonia. Then जो ammonia बना, this ammonia will be nitrification का process होगा. Then it will be converted into nitrate. Okay, with the help of nitrobacter, nitrosomas, nitrococcus. Okay, then it will assimilate again to the this, and the last process is denitrification. Okay, so this is the nitrogen cycle. So क्या हो रहा है, स्टार्ट यहीं से हो रहा है, एंड भी यही हो रहा है. दैट्स व्हाई इट्स अ साइकिल. सो अगेन वी आर लर्निंग थ्रू द रिटर्न थिंग. सो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, रूट्स में आ जाएगा. रूट्स के आने के बाद राइजोबियम होगा, लाइक प्लांट्स की रूट्स में होता है. देर आर ऑल्सो अदर ऑर्गेनिज्म लाइक नोस्टो एस्टोबैक्टर एंड साइनोबैक्टीरिया. ओके, एंड ऑल्सो देर इज अ पॉइंट कि नाइट्रोज कि अगर थंडर लाइटनिंग होता है ना, उससे उससे भी कई बार क्या हो जाता है, नाइट्रोजन सोइल के पास आ जाता है. ओके, नाइट्रोजन प्लस H2 NH3 बन जाएगा. दिस इज नोन एज अमोनिफिकेशन. नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ, क्या बन गया, अमोनिया बन गया. दैट इज अमोनिफिकेशन. ओके, फिर नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ, अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, देन लास्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन हो रहा है लाइक प्लांट का. दिस इज एसिमिलेशन. Then there is assimilation to plants, then plant to waste material, and then to urea. Okay, in ammonification, the nitrogenous waste such as urea and the uric acid, and that remains also, that is converted back to the inorganic ammonia by the bacteria. Okay, again this will be converted into ammonia. So there is bacillus, proteus, clostridium. These are the bacteria which will do that. Okay, last process is the denitrification, uh, converting nitrogen into again the gaseous form. Okay, and that will be done by a bacteria Pseudomonas. Okay, so this is basically the nitrogen cycle, how it works. Now let's come to the carbon cycle. The carbon cycle must be familiar as comparison to the nitrogen cycle, because starting with the carbon dioxide will be in the atmosphere as well. Okay, so this is also a gaseous kind of cycle. देन क्या हो रहा है कि इस रिजर्वेयर से जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इट ऑल विल बी टेकन बाय द प्लांट्स. ओके, प्लांट्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, वाटर होगा, ग्लूकोज बना के हमें ऑक्सीजन दे देंगे. वी ऑल नो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ओके, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस इज फोटोसिंथेसिस. प्लांट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है एंड उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है. सो देर आर सम एक्स्ट्रा स्टेप यू हैव टू रिमेंबर कि CO2 ले रहा है, देर विल बी सम H2O and it will be converted into glucose and some oxygen will be given to us. Okay, then फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है. ये हमारा हम ले लेते हैं ग्लूकोज भी थोड़ा. ग्लूकोज इज लाइक फूड, फूड जो बन रहा है. ओके, और जितना भी जो अब ये बचा है कि 6CO2 और H2O जो यूज हुआ है, दैट विल बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन. तो हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है. दैट ऑक्सीजन विल बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन. ओके, तो रेस्पिरेशन हो रहा है. देन देर इज सम यूज ऑफ एनर्जी ऑल्सो. तो दैट एनर्जी इज रिलेटेड टू द ATP. ATP is basically the adenosine triphosphate is the energy cell of the unit. Okay, like respiration में काम आता है, basically energy का unit है एक. So अब हम क्या रिलीज करेंगे, we will release carbon dioxide. Okay, then this carbon dioxide again go to the environment. ओके, सो दिस साइकिल इज कम्प्लीटेड. ये प्लांट ने लिया, प्लांट से वो क्या निकला, ऑक्सीजन निकला, हमने ऑक्सीजन लिया, हमने रेस्पिरेशन में यूज किया, देन वी गिव कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कहाँ बैक चला गया, अगेन टू द एटमोसफेयर. ओके, नाउ देर इज सम लाइक हमारा फोसिल होता है, फोसिल फ्यूल,
कोई भी डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इफ वी बर्न देम, तो उससे भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो एक साइकिल वो हो गया। इसी तरह हमारा वोल्केनिक प्रोसेस होता है, कई बार ओशियन से भी होता है, तो वहां से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ओके, दैट विल डायरेक्टली गो टू द कार्बन साइकिल इटसेल्फ। ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, रेस्पिरेशन के लिए काम आ रहा है। ओके, देन देर इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट आ रहा है, वही सेम प्रोसेस लिख रखा है। कार्बन हमारे बॉडी में कैसे एंटर करता है, देन दिस इज एग्जांपल ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, इट्स एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल, एटीपी इज एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल। ओके, सो फॉरेस्ट फायर से भी कार्बन साइकिल रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से भी फॉसिल फ्यूल से। ओके, लाइक कार्बन साइकिल सबसे आसान रहता है बिकॉज वी नो कि हाउ रेस्पिरेशन वर्क्स, प्लांट से हम क्या लेते हैं, हाउ बट वी गिव टू प्लांट। ओके, एटमोसफेयर। Also, most important is nitrogen cycle. Okay, second important is carbon cycle and then the phosphorus cycle. Phosphorus cycle basically it's a sedimentary kind of cycle. So what does sedimentary, like we have already discussed what is sedimentary and gases. This process will all occur in the rocks. Okay, it's nothing related to the environment itself. सो बेसिकली क्या हुआ, वोल्केनो होगा, वोल्केनो से थोड़ा लावा निकलेगा, लावा के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। लावा अब कूल डाउन हो गया, कूल डाउन होने से रोक बन गया। ओके, सो कुछ मिनरल्स यही वाले किस्म होते हैं, रॉक्स में होते हैं। ओके, अब ये रॉक क्या होगी, बार बार टूटेगी, वेदरिंग इफेक्ट होगा, सोइल इरोजन होगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू सोइल। ओके, अब रॉक्स है, रॉक्स के अंदर कैसे मिनरल्स है, फॉस्फेट का ऑक्साइड है। ओके, विच इज वेरी कम्प्लेक्स। ओके, बट जब ये रॉक थोड़ा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन दिस फॉस्फेट ऑक्साइड विल बिकम फॉस्फोरस, विच इज नॉट कॉम्प्लेक्स, विच इज सिंपलर। ओके, सो बेसिकली क्या है, वोल्केनो से लावा बना, लावा ठंडा हुआ, ठंडे होने से रॉक बना, रॉक के अंदर फॉस्फेट नाम का ऑक्साइड था, और फॉस्फेट ऑक्साइड था, तो फॉस्फेट ऑक्साइड थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। सो उसके बाद क्या हुआ, जब थोड़ा सिंपलर फॉर्म में थोड़ा ब्रेक हुआ, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोरस। ओके, now this phosphorus is taken again by the animals, एनिमल्स के अंदर ये न्यूट्रिएंट आ गया, देन एनिमल्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं कुछ टाइम बाद। ओके, देन अगेन टू फॉस्फोरस, डेड हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, डिकम्पोज होने के बाद अगेन द प्रोसेस विल गो टू द सेडिमेंट्स। सो अगेन वी आर रिपीटिंग, वुल्केनो से लावा, लावा से ठंडा हुआ, रोक बन गया, रोक के अंदर फॉस्फेट का ऑक्साइड है, सोइल को थोड़ा इरोड हुआ, इरोजन से फॉस्फोरस बन गया, देन हमारे जो जितने भी प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं, उनके पास गया, वहाँ से थोड़े डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होकर दोबारा कहाँ मिल गया, फॉस्फोरस में मिल गया। ओके, देन अगेन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ऑक्साइड बन जाता है। ओके, so this is the phosphorus cycle. Also there is another aspect of this phosphate cycle, like this is plant, plant से animal के पास गया, animal decompose हुआ, phosphorus बना, we all know this thing। but there is also another aspect कि this is plant, यहाँ से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में थोड़ा इसका यूज़ हुआ फॉस्फोरस का। ओके, इन द एग्रीकल्चर, एंड दिस इज रिवर, और रिवर के साथ वो एरिया बह गया। ओके, उस बहने से क्या हुआ कि लाइक दिस इज अ समुद्र का तट। ओके, हम समुद्र देख रहे हैं, या फिर से रिवर के साथ बह के वो सब जितना भी हमारा फॉस्फोरस था, वो आ गया। ओके, तो इससे क्या हुआ, ये सारा फॉस्फेट आके नीचे एक जगह जमा हो गया, दैट इज फॉस्फेट रिजर्व। ओके, सो इससे होगा क्या, बेसिकली दोबारा किस फॉर्म में आ गया, दैट कम इनटू सेडिमेंट्री। ठीक, बिकॉज बिल्कुल नीचे चला जाएगा, दैट इज द सेडिमेंट्री थी। बेसिकली इट्स गोइंग टू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के अगर क्रस्ट पे आ रहा है, देन दिस इज फॉस्फेट रिजर्व। अगर यहाँ से फॉस्फेट आएगा, देन
जितना भी यहाँ का जियो सिंक्लाइन होगा, जियो सिंक्लाइन बेसिकली में थोड़ा सेडिमेंट्री आइटम होते हैं ना जो रिवर के साथ आते हैं, ओके। सो दैट जियो सिंक्लाइन थोड़ा अपलिफ्ट होगा एंड दैट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सम माउंटेन्स, ओके। सो दिस कैन ऑल्सो हैपन। So this is phosphorus cycle basically. Not so important. And there is also a sulfur cycle. If you want to do that, you can do that. That's not also that difficult. So एक बार दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं what we have studied in this. Okay, starting from the nitrogen cycle. So नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन से आया, फिक्सेट हुआ राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, वहाँ से अमोनिया के पास चला गया, देन नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन बाय नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमस, वहाँ से फिर क्या हुआ, एसिमुलेशन होकर नाइट्रेट बना, नाइट्रेट बनने के बाद डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, देन इट विल गो टू अगेन एटमोसफेयर। सेकंड एक लाइन आ रहा था दैट इज फूड चेन, वहाँ से कुछ वेस्ट निकला, डिकम्पोज हुआ, then it will go to the this ammonia and again this process happened, okay। In carbon cycle is basically easy one, reservoir, फोटोसिंथेसिस हुआ, हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एनवायरनमेंट में चला गया, फोसिल को बर्न किया, उससे सीधा कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, देन ओशन लिया, ओशन में कुछ वोल्केनो होता है तो थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, देन इट विल आल्सो गेट डायरेक्टली टू द environment। फोस्फोरस इज ऑल्सो इजी, वोल्केनो था, लावा था, थोड़ा ठंडा हुआ, रॉक्स हुआ, सिंपल फॉर्म में आया, फोस्फोरस बन गया, एनिमल से डिकम्पोज होके अगेन टू द फोस्फोरस, ओके। बस जस्ट रिमेंबर इट्स अ सेडिमेंट्री साइकिल, okay, like it's a graph of the biome distribution, like biome as we have studied it's a broad term, okay। It consists of very large kind of area like of tropical forest, temperate forest, coniferous, Arctic region, tundra forest, grassland, desert. Like we will cover each, like what is tropical forest, what is temperate forest in a very detailed manner. But for now, what this graph is showing, this is related to the mean annual temperature and the mean annual precipitation. कि एक साल में टेम्परेचर एवरेज कितना रह रहा है, ओके। एंड दिस इज रिलेटेड टू द प्रेसिपिटेशन कि 200 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर कितना बारिश हो रहा है। सो वी कैन जस्ट से कि आर्कटिक रीजन में थोड़ा ठंड रहता है और बारिश भी कम होता है, बट ये नहीं है कि बिल्कुल ही हर जगह सेम रहेगा। देर विल बी सम इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो धीरे धीरे कई जगह ऐसे मिलेगी जो आर्कटिक का रीजन होगा, एंड देर विल बी ऑल्सो थोड़ा टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। देर इज ऑल्सो अ रीजन लाइक दिस, ओके। देन देर इज टुंड्रा, टुंड्रा इज ऑल्सो लाइक आर्टिक में बेसिकली क्या होगा, कोई वेजिटेशन नहीं होगा, बट जितने भी हमारे टुंड्रा फॉरेस्ट होते हैं उनके ऊपर थोड़ा ये देखा होगा, लाइक हमने जम्मू कश्मीर में जैसे हमें दिखते हैं प्लांट ट्रीज जैसे दिखते हैं थोड़े ट्रियांगुलर शेप के, दैट इज टुंड्रा फॉरेस्ट, ओके। तो इसके बाद डायरेक्टली थोड़ा टुंड्रा वेजिटेशन दिखेगा हमें, दिस काइंड ऑफ। एंड कोनिफेरस, कोनिफेरस भी नो कि वही ट्रायंगुलर शेप। देन देर इज ग्रास लैंड एरिया, कि ग्रास लैंड एरिया में कई बार क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, एंड द थिंग कि बारिश एक एवरेज रहता है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गया, अगर इतना हो गया देन इट विल कन्वर्ट इनटू forest as per succession. So it's have a wide range of temperature, but not so much precipitation. Okay, like tropical forest is like they have wide range of precipitation. Okay, and temperature is also good. So यहाँ काफी बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे। दिस इज टेम्परेट, थोड़े पतझड़ टाइप के जो पेड़ होते हैं। Okay, that thing will also come in। एंड डिजर्ट में बेसिकली क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड रेनफॉल देखो काफ़ी लो है, ओके। सो इट्स लाइक एक्स्ट्रा टॉपिक हमने जो कर लिया है कि वेयर इट इज़ इम्पोर्टेंट।
Okay, so what's our main goal was to study is this shaded region. So it's like a connecting pillar between different ecosystems. Okay, so this area that is shaded, this is ecotone. So we will find a great diversity here. There's the main point of this studying this graph. So ऐसा नहीं होगा कि एकदम यहाँ कोई चेंज आएगा, दैट एरिया सडन चेंज नहीं आएगा, देर विल बी सम डिफरेंस एंड a connecting point. At that connecting point, that will be a ecotone. Okay, let's come to the aquatic ecosystem. So I think थोड़ा नाइट्रोजन साइकिल हो गया याद, नाइट्रोजन साइकिल हुआ याद थोड़ा. Did you get the point of nitrogen cycle? All points. Any doubt? Is there any network issue? Am I audible? Okay, am I audible? Hello. Is there any network issue? Yes, there is some network issue. नेटवर्क तो सही है.
last two water. See that issues like that. It's also good.